Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. I am very upset at the developments that is happening at IBPS. For RRB, they have reopened the registration, and for IBPS PO also, they are going to open the link for re-registration. This has led to anguish in the existing candidates, and it is an unfair treatment to them. Last night I posted one video, today morning also I posted one video and told you I am figuring out what can be the remedy to take care of this situation. I discussed the matter with some senior bankers and the experts of HRD so that we adopt a strategy which gives us solution, not the protest. Because my experience in life says protest does not bring results, but right approach at right time can get good result for us because we are keen in our career. We are interested in selection. We are interested in job. So what is the right strategy? Usually some people may suggest Twitter campaign or something like that, but what I suggest is follow these lines, it will bring good result to you. This is the advice of some senior bankers who are expert in HRD. They have suggested that now each candidate who feels that he or she is affected by these guidelines should write to IBPS on their redressal mechanism, and he or she should point out three aspects. First, you should mention in your complaint why it is unfair to existing candidates. You should give them reason why you are feeling it is unfair. First, change of interface was not known at that time. It slowed the speed of candidates, whereas new candidates can practice this interface, can perform better. So this is one unfairness. Second point you should mention is got less time for preparation. Fresh candidates are getting 3 months more. So it is going to affect the performance. So what is the way out? You should suggest the normalization process must take care of these aspects in consideration while deciding the cutoff. So as a candidate, you are appealing to IBPS as you appeared earlier. You were unaware of interface. You were got less time. You should get benefit in normalization. They are experts. Those can tell how much effect will come due to excess time and due to knowing the interface. So that much marks difference must be given to you. You should file this appeal to IBPS. I am sharing the link of that redressal thing in description and comment column. Please file your complaint today and confirm me on comment column. Sir, I have filed. Each one of you will do this solemn task and share this video with maximum possible groups, with maximum possible candidates, so that lakhs and lakhs of candidates file this appeal with IBPS and you get justice. I am not in favor of any campaign that does not give any result to you. I am interested in your selection. I am interested in justice. And I have consulted the experts in banking and they feel this is the only way out, that normalization process should take care of existing candidates, and it is possible for IBPS. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल रात से जब से ये नोटिफिकेशन आया है मैं बेचैन हूँ. मैंने कल भी आपको एक वीडियो डाली, आज सुबह भी मैंने वीडियो डाली, और आज मैं लगातार बैंकिंग के एक्सपर्ट्स और एचआरडी के एक्सपर्ट्स से चर्चा कर रहा हूँ.
कि हम क्या करें कि इन बच्चों का भविष्य बन जाए, हम क्या करें कि ये बच्चे जो निर्दोष हैं इनके साथ जस्टिस हो जाए। और उन्होंने कुछ सलाह दी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी लोग एक्साइटमेंट में ट्विटर कैंपेन पे चले जाते हैं या इधर उधर की क्रिटिसिज्म शुरू करते हैं, उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। मैंने अपने जीवन में पाया है कि जब हम क्रिटिसिज्म पे चले जाते हैं या हम कैंपेन्स पे चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है उससे। हमें चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। क्या करें कि हमें जस्टिस मिलेगा, किसका दरवाज़ा खटकाएं कि हमें जस्टिस मिलेगा, ये हमें सोचना है। तो मैंने एक्सपर्ट्स की सलाह ली है और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि अगर बच्चे ये रास्ता अपनाते हैं तो इनको जस्टिस मिल सकता है। वो रास्ता क्या है? आप IBPS की वेबसाइट पे जाएंगे, जो रीड रसल वाला वहाँ पे लिंक है उसको दबाएंगे और वहाँ ये आप अपनी अपील डालेंगे। लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आप सब लोग डालेंगे, इंडिविजुअली डालेंगे, लाखों की तादाद में ये अपील जानी चाहिए। सबसे पहले आपने कहना है कि कैंडिडेट्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट क्यों, कैंडिडेट्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट क्यों, और फिर उसमें अपना कारण देना है। पहला कि जो चेंज ऑफ इंटरफेस था वो उन कैंडिडेट्स को नहीं पता था जो सितंबर में अपीयर हुए, और इसके कारण उनकी स्पीड कम रही और उस स्पीड के कम होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हुई, जिसमें आप कहोगे कि मेरी भी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई। फिर आप कहेंगे कि जो अब कैंडिडेट बैठेंगे उनको इस इंटरफेस के बारे में पता है, वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इस प्रकार मेरे साथ अन्याय हुआ। दूसरा, मुझे कम समय मिला पढ़ाई करने का। अब जो लोग बैठेंगे उनको 3 महीने अधिक मिलेंगे पढ़ाई करने के, तो इस कारण भी जो मेरी परफॉर्मेंस है और जो अब वालों की परफॉर्मेंस है वो कंपैरेबल नहीं है, वो कंपैरेबल नहीं है। तो इसका क्या रास्ता है IBPS के पास? तो IBPS को आप अपील करेंगे कि जो आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं उसके अंदर आपके पास अधिकार है कि आप इन तथ्यों को ध्यान में रखकर हमारे साथ न्याय करें और नॉर्मलाइजेशन हमारी फेवर में करें। उनके पास एक्सपर्ट हैं, वो ये जजमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी को 3 महीने फालतू मिले हैं तो उसकी कितनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, किसी को इंटरफेस पता है और नहीं पता है उसमें कितना अंतर होगा, तो वो नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट दे सकते हैं। ये हमें अपील करनी है, लाखों की तादाद में ये अपील हमें IBPS तक पहुंचानी है ताकि हमारे को जस्टिस मिले। हमें नौकरी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, पर हमें भी तो जस्टिस चाहिए। हमने एग्ज़ाम दिया है, हमने मेहनत की है, हमें भी तो जस्टिस मिलना चाहिए। तो मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक ग्रुप्स तक पहुंचाइए, ताकि लाखों की तादाद में ये रिक्वेस्ट IBPS के पास पहुंचे और इस पर कार्रवाई हो। ये मैंने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेके आपको ओपिनियन दी है। इस तरह के चीज़ों का असर होता है और आपको भी फ़ायदा मिलेगा। मेरा 31 साल का बैंकिंग का तजुर्बा है। मैं भी चीफ HRD रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक में। मुझे पता है HRD में कैसे काम होता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन आती है, उसको सुनना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और ये तब होगा जब आप लाखों की तादाद में इसको करेंगे, ताकि IBPS को भी पता लगना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय आज कैंडिडेट्स के साथ किया। किसी को मौका मिल रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमें मौका मिल रहा है, आप क्यों ऐसा कह रहे हो? आपको किसी को भी मौका मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमें इस बात की आपत्ति है कि अगर मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मैंने टाइम से पहले एग्ज़ाम दे दिया, मेरे साथ अन्याय क्यों? मैं अपने लिए न्याय मांग रहा हूँ, औरों के लिए अन्याय करने को नहीं कह रहा हूँ। कंपेन से कुछ नहीं होता, इसलिए मैं कभी उसकी फेवर में नहीं हूँ। सही जगह पे अगर हम सही अपील करते हैं और उनको रास्ता बताते हैं कि सर ये कर सकते हो आप, तो ज़रूर रास्ता निकलता है। ये आप करके देखिए, आजमा के देखिए। भगवान ने चाहा तो ये अन्याय नहीं होगा, आपके साथ न्याय होगा। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी न्याय की लड़ाई लड़ रहा
home. God bless you all.